السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور سب سے پہلے خبر دیں آپ کو، گجرات پولیس نے رات گئے اپنی عدالت لگا لی۔ حکم امتناعی کے باوجود مکان پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ گجرات کے محلے فیروز آباد میں رات گئے پولیس نے غنڈوں کے ہمراہ گھر پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے مرد پولیس اہلکاروں نے خواتین سے بدتمیزی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ گجرات پولیس نے رات گئے اپنی عدالت لگا لی۔ گجرات میں پولیس کی حکم امتناعی کے باوجود مکان پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ فیروز آباد میں رات گئے پولیس کا غنڈوں کے ہمراہ گھر پر دھاوا۔ گجرات پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ مرد پولیس اہلکار کی خواتین سے بدتمیزی۔ خواتین نے کہا کہ پولیس نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ گجرات پولیس نے رات کے اپنی عدالت لگا لی۔ حکم امتناعی کے باوجود مکان پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ گجرات کے محلے فیروز آباد میں رات گئے پولیس نے غنڈوں کے ہمراہ گھر پر دھاوا بول دیا۔ کراچی سیراب گھوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی گرفتار ہو گئے۔ زخمی ڈاکوؤں کو عباسی اسپتال منتقل کیا گیا، جن کی شناخت اسماعیل اور فیروز کے نام سے ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، کراچی سیراب گھوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 زخمی ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ زخمی ڈاکو کو عباسی اسپتال منتقل کیا گیا، جن کی شناخت اسماعیل اور فیروز کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں پولیس نے اسٹریٹ کرائم کا 3 رکنی گروہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں اور ان میں سے ایک 9mm اور 2 بغیر لائسنس 30 بور پستول برآمد کیے گئے۔ پولیس نے مزید کہا کہ ملزمان پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل کاٹ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، کراچی میں پولیس نے اسٹریٹ کرائم کا 3 رکنی گروہ گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں اور ان سے ایک 9mm اور 2 بغیر لائسنس 30 بور پستول برآمد کیے گئے۔ پولیس نے مزید کہا کہ ملزمان پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ تیز رفتاری نے ہستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک حادثہ 5 جانیں لے گیا۔ حافظ آباد میں ڈرائیور کی غفلت 1 جان لے گئی۔ رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں گوجرا کے قریب کار اور ٹرالر میں تصادم قیمتی جانیں لے گیا۔ حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے، جبکہ ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ بدقسمت خاندان ایئرپورٹ سے واپس لیا جا رہا تھا۔ حافظ آباد میں موٹر وے M2 انٹرچینج کے قریب مزدا اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے سبب پیش آیا۔ رحیم یار خان کے علاقے بھونگ کے قریب گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ ٹائر پھٹنے کے سبب پیش آیا، جس کے باعث گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 افراد معجزانہ طور پر بچ گئے۔ مان صحرا میں لسا نواب روڈ پر آٹے سے بھرا ٹرک الٹ گیا۔ حادثے میں ایک مسافر زخمی ہو گیا۔ بنو ضلعی انتظامیہ ان ایکشن، غیر معیاری کولڈ ڈرنکس بنانے والی فیکٹری سیل کر دی۔ ضلعی انتظامیہ بنو نے کارروائی کرتے ہوئے غیر معیاری کولڈ ڈرنکس بنانے والی فیکٹری سیل کر دی۔ بنو کے علاقے آزاد منڈی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر خان نے چھاپا مارا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے بے ضمیر عناصر دھر لیے گئے۔ فیکٹری سے مختلف برانڈز کے بوتل پیکنگ میں زائد المیعاد مشروبات اور دیگر غیر معیاری سامان ضبط کر لیا گیا۔ بڑی مقدار میں کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والے کیمیکل بھی قبضے میں لیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں اشیاء خورنوش میں ملاوٹ کرنے والے عناصر کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تبدیلی سرکار کی انوکھی تبدیلی، اب آٹا لائسنس کے بغیر نہیں ملے گا۔ عوام کے لیے آٹے کا حصول مشکل بناتے ہوئے دکانداروں پر کڑی شرائط عائد کر دی گئیں۔ قصور سے محمد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے 20 کلو تھیلے کا ریٹ 860 روپے تو مقرر کر دیا، مگر ساتھ یہ دکانداروں پر محکمہ فوڈ سے سخت شرائط کے ساتھ لائسنس بنوانے کا نیا قانون متعارف کروا دیا۔ دکاندار اپنا NTN نمبر، مارکیٹ کمیٹی کا لائسنس، ملکیتی ثبوت، فرد ملکیتی بیانی حلفی فارم دے کر محکمہ فوڈ سے لائسنس حاصل کر کے آٹا فلور مل سے خرید کر فروخت کر سکے گا۔ اس عجیب و غریب قانون پر گلی محلوں اور دیہاتوں میں آٹا فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لائسنس بنوانے کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے خرچ کرنے کے علاوہ مختلف سرکاری دفاتر کے
धक्के खाने पड़ेंगे। लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से दुकानदार आटा फरोख्त नहीं कर पा रहे। हम मिल से आटा लेते हैं तो मिल वालों को फोन करते हैं कि आटा भेजे, तो वो कहते हैं कि फूड कंट्रोल अथॉरिटी से लाइसेंस बनवा के तो वो उसकी फोटोकॉपी हमें दें, फिर आपको आटा भेजेंगे। छोटे दुकानदार जो है वो तो बिजली का बिल और किराया बहुत मुश्किल पे करते हैं या अदा करते हैं, तो उनके लिए एनटीएन नंबर हासिल करना या गोशवारे जमा करवाना या इनकम टैक्स देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को इस पे नजरसानी करनी चाहिए कि ये छोटे दुकानदारों का कत्ले आम हो रहा है। इमरान खान के वजीर मशीर इसकी हुकूमत को मजाक बना रहे हैं। खान साहब, हम गरीबों की जिंदगी पहले ही बहुत तंग है, अब मेहरबानी करके इससे मजीद तंग ना बनाओ। अवाम को कुछ सहूलत दो। 2 साल हो गए हैं आपको हुकूमत में आए हुए। हमें आटा नहीं मिल रहा, 3-4 दिन हो गए, हम बहुत आटे से परेशान हैं, हमें आटा चाहिए। कितनी दुकानों से पूछा, आटा कह रहे कैसे मिल ही नहीं रहा। जब बोलते तो कहते हैं हमें हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा आटा। तो बताएं हम क्या करें, क्या खाएं। अवाम का कहना है तब्दीली सरकार की अजीबोगरीब पॉलिसियों की समझ नहीं आ रही। ऐसी पॉलिसियों के बायस सिर्फ गरीब अवाम की जिंदगी अजीरन बन रही है, जबकि आटा फरोख्त करने वाले दुकानदार भी लाइसेंस के इस कानून को अपने और अवाम के लिए परेशानी करार दे रहे हैं। ऐसे कवानीन बनाने वालों को सोचना होगा कि ऐसे कवानीन ना बनाए जाएं जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो, बल्कि कानून ऐसा हो जिससे अवाम को सहूलत और रिलीफ हासिल हो। महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। उमरकोट समेत जिला भर में हालिया बारिशों के बायस हजारों एकड़ रकबे पर तैयार मिर्च की फसल डूब गई। काश्तकार रुल गए। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी में लार्ज मिर्च की बरामद बराए नाम रह गई, जिसके बायस व्यापारी परेशान हैं। सिंध की बारिश मिर्चें खा गई। उमरकोट समेत जिला भर में तूफानी बारिशों के बायस हजारों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिसके सबब 80% सुर्ख मिर्च तबाह हो गई। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और हालिया जो बारिशें हुई हैं उसके बाद तो तकरीबन 80% से ज्यादा मिर्ची जो है वो तबाह हो गई है, और जो पिछले साल का स्टॉक था वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। व्यापारियों की एडवांस दी गई रकम भी डूब गई। रवां साल में सुर्ख मिर्च का शदीद बहरान सर उठाने लगा, जबकि मुल्क भर की मिर्च की जरूरत पूरे करने वाली एशिया की सबसे बड़ी सुर्ख मिर्च मंडी कंदी में मिर्च की बरामद बराए नाम रह गई। खुद भी देख रहे बारिशों ने हमें तो बर्बाद कर दिया है। मिर्ची इस हिसाब से कहाँ से आएगी मिर्ची? मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई 15-20% से ज्यादा मिर्ची आ भी जाए, और मुल्क की हालात के हवाले से बहुत बड़ा नुकसान है। मैशर को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस हिसाब से मिर्ची का कोई न कहीं से बाहर से लानी पड़ेगी, यहाँ से मुल्क के हिसाब से कहीं पूरी नहीं होगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस ताजरों समेत काश्तकारों को लाखों का नुकसान हुआ है, जिसके बायस इलाके में बेरोजगारी और मुआशी बहरान का खदशा बढ़ गया। कैरोड़ पका में काश्त वाइट गोल्ड यानी कपास की फसल हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हो गई। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर रेट पर फसल की कपास की खरीदारी न होने के सबब किसान परेशान हैं। फखरुल जमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़री मुल्क है, जिसकी 70% आबादी किसी न किसी तरह ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत में फसल कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जिससे हासिल होने वाली रेशम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुमालिक भी निहायत अहमियत की हामिल है। अरसा दराज से फसल कपास से मुंसलिक किसान शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम न मिलना, जिस पर किसानों का कहना है ये कुछ सालों से फसलों का बहुत ज्यादा बहरान है, जिस वजह से फसलात कीड़े की वजह से या सही बीज और खाद की वजह से सही प्राप्त नहीं हो रही, और जो हो रही है फसल उसका रेट पूरा नहीं मिल रहा। जो गवर्नमेंट का रेट है वो ज्यादा है, जो इलाके में बहुत कम मिल रहा है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम अज कम जो असर रेट है उसके मुताबिक अमल दरामद कराया ताकि किसान खुशहाल हो। किसानों का यही कहना है कि एक तो हम पहले ही परेशान हैं, किसानों को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरी, हमारी जो फसल कपास है उसकी खरीदारी हुकूमती नरखों पे नहीं हो रही, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी फसल कपास की हुकूमती नरखों के मुताबिक खरीदारी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज, कैरोड़ पक्का। हाफिजाबाद में चीनी का बहरान गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरी चीनी के हुकूमती रेट की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। जिली इंतजामिया को खबर तक नहीं। जवार इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद जिला भर में चीनी का बहरान गमगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। लोग चीनी की हुकूमती रेट पर तलाश में मारे मारे फिरने लगे। चीनी ब्लैक रेट में 100 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रही है। जिली इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। हाफिजाबाद शहर और इसके मुसाफाती इलाका जात में इस वक्त दुकानों पर चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आदमी चीनी की खरीदारी के लिए रोल कर। चीनी 100 रुपए मिल रही है, आटा लभदा नहीं, अच्छा मजदूरी है कोई नहीं। दसो जी असीं हुण किहड़े पासे जाए? चीनी जी लभदी है 100 रुपए किलो लभ रही है,
आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, महंगाई जी है वो मतलब गरीब आदमी की जान कटती पई है। मेहरबानी करे कोई हुकूमत जी है कोई तामन करे कोई ना कोई बेहतर। दूसरी जानब जिली इंतजामिया की जानब से चीनी की हुकूमती रेट पर दस्तयाब होने के खोखले बयान देने के अलावा अभी तक किसी किस्म का अमली इकदाम देखने में न आ सके, जिसकी वजह से अवाम पीटीआई हुकूमत को कोसने लगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। दिना में करोड़ों की लागत से शुरू किया गया प्रोजेक्ट आशियाना हाउसिंग स्कीम हुकूमत की तवज्जो का मुंतजिर है। मॉडल घर और आशियाना हाउसिंग स्कीम खंडात में तब्दील होकर रह गए से जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। अनासर की इमा पर कदीमी ग्राउंड उजड़ गया, आवाम का शदीद एहतजाज। तुलंबा में खेल के मैदान पर हल चलवा दिए गए हेडमास्टर ने ग्राउंड में बच्चों और खिलाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी ऐद कर दी। खिलाड़ियों का मकामी इंतजामिया से ग्राउंड खुलवाने का मुतालबा। तुलंबा के नवाई गांव 1918 में खूबसूरत ग्रासी ग्राउंड बनाया गया था, जिसमें छोटे बड़े सभी खेलकूद में हिस्सा लेते थे और अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मुख्तलिफ खेल खेलते थे। इस ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेटर राव इफ्तिखार और शब्बीर अहमद जैसे खिलाड़ी भी खेल कर गए। ये ग्राउंड बगैर हुकूमती सरपरस्ती के गाँव के लोगों ने अरसा 30 साल की मेहनत से अपनी मदद आपके तहत तैयार करवाया था। ये ग्राउंड जिला खानेवाल के खूबसूरत ग्राउंड्स में से एक था, जिसे स्कूल हेडमास्टर तसव्वुर बलोच ने ट्रैक्टर से हल चलवाकर खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मकामी खिलाड़ियों में काफी गम गुस्सा पाया जाता है और खिलाड़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने तसव्वुर बलोच के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। याद रहे कि इस गाँव में बढ़ती हुई मंशियात फरोशी ने कई बच्चों की जिंदगियों को निगल लिया है और ये ग्राउंड खिलाड़ियों के खेल का वाहिद ग्राउंड था, जिसको तसव्वुर बलोच ने न जाने किस रंज की बिना पर हल चलवाकर जानबूझकर खत्म कर दिया। और खिलाड़ियों का कहना है कि हेडमास्टर ने धमकी दी है कि अगर ग्राउंड को खुलवा भी लिया गया तो ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों पर झूठे मुकदमात बनवाए जाएंगे। गांव वालों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेकर ग्राउंड को फौरी तौर पर बहाल करने और तसव्वुर बलोच के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ अयाज अहमद सहू, सच न्यूज, तुलंबा। बाग में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। बिजली गायब रहना मामूल बन गया, कारोबारी जिंदगी मुतासिर होने लगी। आमिर अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। बाग में बिजली का बदतरीन शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावज कर गया। गैर एलानिया बिजली की बंदिश की वजह से अवाम में गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि एक तो कोरोना और महंगाई से जीना महाल हो रहा है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। तो अभी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग करके हमारे कारोबार इतने डिस्टर्ब कर दिए कि माशी तौर पर ना तो हम किराया दे सकते हैं, ना तो जरूरियात जिंदगी के जो मामूलात हैं हम उन्हें पूरा डाल सके। कारोबारी हजरात तो बहुत ही मुतासर हो रहे हैं, लेकिन गर्मी ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। वैसे ही ऊपर से बिजली का न होना बड़ा अलमी है। ये सारा जो प्रॉब्लम है हम किसी एक वजीर को किसी को तो नहीं दे सकते। ये आवाम तंग है, खास करके जो छोटा तबका है, टेलर्स हो गए, मोबाइल्स वाले हो गए, या जिनका बिजली के साथ ज़्यादा काम है वो ज्यादा मुतासर हैं। ट्रांसफार्मर, खंभे और तारें बोसीदा होने और हाई वोल्टेज से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया अक्सर जल जाती हैं। तो हम ये अपील करते हैं और प्लस दूसरा ये काम किया जाए कि जो ट्रांसफार्मर जो जितने खराब हैं उनको रिप्लेस करके नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि आइस्को को पाबंद किया जाए कि वो बिजली की तवील लोड शेडिंग से इज्तनाब करे। एक तरफ तो बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने जहां शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी, तो दूसरी तरफ टैक्सेस, जीएसटी और फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर ओवर बिलिंग करके शहरियों को लूटा जाने लगा। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। मीरपुर खास में हेस्को ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान हैं। उबैदुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहर भर में लोड शेडिंग के साथ 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरियों का कहना है कि बिजली का गायब होना रोजाना का मामूल बन चुका है। हेस्को हक्काम अपने फोन नंबर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से घंटों बिजली नहीं होती। यहाँ लाइट का निजाम, तो आप पूछ रहे हो कि लाइट कितने घंटे है, ये पूछो कि लाइट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये सूरज सुबह निकलता है तो बंदा दिखने में आता है, सारी रात लाइट नहीं है। ऊपर से मच्छरों का आजार है। शहर में कारोबार सारे ठप पड़े हुए हैं। जो भी बेचारा सुबह आता है, हम प्लम्बर है, सुबह आते हैं, किसी के घर पे लाइट होगी तो हम मोटर बनाने जाएंगे, सारा दिन आसरा कर करके शाम को वापस चले जाते हैं। कारोबार वगैरह सब ठप हुए पड़े हैं। उसके अलावा धंधा वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा लाइट की वजह से, और गर्मी भी बहुत हो रही है, मच्छर भी बहुत तंग करते, रात के टाइम लाइट होती नहीं है, बहुत परेशानी है। शहरों के पास नहीं कि मीरपुर खास में कितनी लोड शेडिंग है। इन शहरों का ये मुतालबा है कि लाइट के निजाम को दुरुस्त किया जाए ताकि जिंदगी जो है आसान से गुजर सके। कैमरा टीम के साथ उबैदुल्लाह कोरी, सच टीवी न्यूज, मीरपुर खास।
बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। कमालिया में एक्शन ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में एक्शन वाबडा कलीमुल्ला तूर की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 290 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इस मौके पर एक्शन वाबडा कलीमुल्ला तूर का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमारे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और हमारे मिनिस्टर बराए एनर्जी और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की हिदायत की रोशनी में हमने बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें हम अब तक तकरीबन 290 के करीब बिजली चोर पकड़ चुके हैं और उनसे हमने 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की है। आवाम से हमारी यही गुजारिश है कि वो यहाँ भी बिजली चोरी देखें, उसकी हमें फौरन इतला दें। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मिनिस्टर बराए एनर्जी सेक्रेटरी वाटर एंड पावर डिवीजन की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुहिम जारी है। हमारी टीम दिन रात चेकिंग कर रही है। बिजली चोरी करने वाले कौमी मुजरिम है, ऐसे मुजरिमों से आने हाथों से निपटा जाएगा। और शहरियों से अपील है कि अगर कोई शख्स भी बिजली चोरी कर रहा है हो तो ऐसे शख्स की इतला हमें दें। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। बिजली चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। दादो के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। गंदगी की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म ले लिया। शहरी अजियत में मुब्तला हैं। शोएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कूड़ा क्रिकेट की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। शहर के अहम शाहराहों और कारोबारी मराकज में कूड़े के ढेर और सीवरेज के नाकस निजाम ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। ना कोई कचरा उठाता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं और आगे आप खुद देख सकते हैं ना कोई यानी समझो कि कुछ है ही नहीं। कारोबार भी बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं और क्या नाम है, लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और तंग भी होते हैं लोग गुजरने में। शहर में सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तालीमी इदारों के बाहर कूड़ा क्रिकेट की वजह से बच्चों की तालीम सख्त मुतासिर हो रही है और कारोबारी मराकज में सफाई न होने की वजह से दुकानदार भी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। फोटो भी भेजे और कहा भी कि ये कारोबारी इलाका है, इसमें सफाई होनी चाहिए। मेरे कहने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं हो रहा। सामने गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बाहर ये इतना बड़ा गंद कचरा पड़ा हुआ है। सुबह के टाइम स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने स्कूल जाने के लिए परेशानी हो रही है। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में बढ़ती हुई गंदगी का नोटिस लेकर सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाई जाए ताकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से अवाम को निजात मिल सके। शोएब तहीम, सच टीवी, दादू। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरम बरम हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए हसन रहमानी की रिपोर्ट। रहीम यार खान और उसके मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरम बरम हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी अरसा 2 साल से गलियों में खड़ा होने की वजह से इलाका मकीने को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। दरबारी का सार्जी ये इलाका है, TMNA सब बात नहीं सुन रहे। हमारी बल्दिया ऑफिसर भी कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते गलियों से, नमाजी बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। हम सर जी क्या करें, जिसको भी कहते वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इलाका का कहना है कि TMA के आला अफसरान को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके का मसला हल नहीं हो रहा। हम अपनी मदद आपके तहत गलियों की सफाई करते हैं, जबकि आला अफसरान दफ्तरों में बैठे फोटो सेशन तक महदूद हैं। यहाँ पे कोई सेवरमैन नहीं आते, कोई बल्दिया वाला नहीं आता यहाँ पे सफाई सुथराई करने के लिए। पानी हमारे जो है हमारे घरों में जाता है, हम परेशान है इस पानी से। बदबू की वजह से वायरस है, बीमारी है, हमें टेंशन होती है। नमाजी हमारे यहाँ से नहीं गुजर सकते। अहले इलाका ने MNA, MPA और आला अफसरान से मुतालबा किया है कि मर्द दरबारी में सीवरेज के निजाम को हल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। हालिया बारिशों ने खानेवाल की सब्जी मंडी की हालत ही बदल डाली। ताफुन और गंदगी से सब्जी मंडी में सांस लेना भी महाल हो गया। रशीद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल शहर और गिरदो नवाह में होने वाली बारिश ने जिले इंतजामिया समेत मार्केट कमेटी अमला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाइस सब्जी मंडी गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताफुन के बाइस सब्जी मंडी में सांस लेना भी दुश्वार है, जबकि शहरी सब्जी के साथ साथ बीमारियां भी घर ले जाने पर मजबूर नजर आते हैं। यहाँ पे बारिश की वजह से इतना गंद है कि सब्जी क्या खरीदेंगे या चलने की जगह नहीं है। मार्केट कमेटी से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सफाई करवाई जाए। यानी ये इधर बहुत ज्यादा गंद है, जिसकी वजह से हमारा जीना मुहाल हुआ है और ना इधर कस्टमर वगैरह आते हैं
और ना ही इधर कोई सफाई वाला आता। सब्जी मंडी की इस खराब सूरत हाल के बाइस ताजिर और शहरी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की नाकस कारकर्दगी के बाइस सब्जी मंडी में कारोबारी मामलात भी बुरी तरह मफलूज हो गए हैं। मार्केट कमेटी की नाकस कारकर्दगी के बाइस शहरी सब्जी मंडी से बजाय सब्जियां खरीदने के बीमारियां खरीद कर घरों को ले जा रहे हैं। शहरी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल समेत जिले इंतजामिया से सफाई सुथराई का मुतालबा करते भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। इंतजामिया की लापरवाही और गफलत कई रोज से आरिफ वाला की गल्ला मंडी के अतराफ जमा बरसाती पानी की निकासी न हो सकी, जिसके बायस ताजिरों को ज़रूरी अजनास की खरीदो फरोख्त में दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा वट्टू। आरिवाला कई दिनों से गल्ला मंडी के अतराफ में खड़ा बरसाती पानी ताहाल न निकाला जा सका, जिसके बायस गंदे बदबूदार पानी से न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि इस जौहर से ज़रूरी अजनास से लोड गाड़ियों का गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया की इस लापरवाही पर गल्ला मंडी के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे जो है वो इंतजामिया जो है वो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रही, बल्कि ये कई अरसे से ऐसे ही चल रहा है। इंतजामिया अब तो बिल्कुल ही बेहिस हो चुकी है। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि ये मसला जो है वो हल किया जाए, पानी का निकास जो है वो किया जाए फौरी। मच्छर वादू में बदबूदार पानी 2 महीने से खड़ा होया वा, कोई बंदा अगे पीछे कोई इंतजाम वाला कोई गल ही नहीं सुनता है, ना मार्केट कमेटी वाला ना कोई बल्दिया वाला। गुज़श्ता कई रोज से ताजिर इस ताफुनज़दा माहौल में कारोबार जारी रखे हुए हैं। ताजिरों का कहना है कि इंतजामिया की इस मसले पर तवज्जो भी दिलवाई गई, मगर इसके बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। ताजिरों ने गल्ला मंडी के तरफ से बदबूदार पानी की निकासी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बढ़ती महंगाई की तो हरूनाबाद में बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। सब्जियों, फलों समेत दीगर जरूरियात जिंदगी और आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। इंतजामिया गिरां फरोशों के सामने बेबस नजर आने लगी। अवामी और समाजी हलकों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। राशिद अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह हरूनाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मौजूदा दौर में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। आए रोज सब्जियों, फलों और आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों का जीना तो बर्क कर दिया है, जबकि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के खाली खुली दावों के सिवा कोई अमली इक़दाम करती दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी जानब मुकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जिसके बायस नजायज मुनाफाखोर मुतर्रक हो चुके हैं और वो इंतहाई दीदा दलेरी से आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने मौजूदा दौर के सादक अमीन हुक्मरानों से दर्दमंदाना अपील किया, खुदारा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इकदाम उठाएं ताकि गरीब आवाम भी रियासत मदीना में सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। रावण में आटे की मनसूई किल्लत ने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। शहरी कहते हैं हसूल के लिए परेशान नजर आने लगे। मोहम्मद इलियास रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह रायगढ़ शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू होकर रह गया है। चीनी के बाद तहसील रायगढ़ में 31 फ्लोर मिल मालकान ने रायगढ़ गिरदोनवा में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है, जिससे शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। आटा 65 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहर में वाक़या दर्जनों दुकान आटे की दुकानों पर आटे की सप्लाई कई रोज से रोक दी गई है। लोग आटे के हसूल के लिए खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटे का 20 किलो का थैला 1100 से 1200 रुपए फरोख्त हो रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से 20 किलो का थैला 850 रुपए फरोख्त कीमत जो है मुकर्रर की गई है। उसके बावजूद जो है आटा महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से कहा, आटा तो तकरीबन मिलता ही नहीं है पिया, जे मिलता है तो 75 रुपए किलो मिलता है पिया। तो जिस गरीब ने जाके दिहाड़ी करके राजा मगर इट्टा ढो के ते कमाना है 500 रुपया, तो वो आटा ही जरा खाएगा, बाकी तल्ला करके गल गई। तो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकेगा। और आला अहकाम और हुकूमत पंजाब से ये गरीब शहरियों ने अपील की है कि आटे के बहरान पर काबू। बढ़ती महंगाई से चौक कुरैशी के अवाम बेहाल हो गए। शहरियों ने महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। चौक कुरैशी और इसके गिरदो नवा में इस बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। चौक कुरैशी की आवाम महंगाई से बिलबिला उठी। टिबा करीमाबाद की आवाम ने कहा कि बिजली और गैस की घंटों लोड शेडिंग के बावजूद भी बिजली और गैस के हजारों के बिल आवाम पर बोझ डाल दिए जाते हैं। तो इसके अलावा गरीब लोग जो है दिहाड़ीदार हैं, 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। 500 रुपये में जिन लोगों के घर के अफराद ज्यादा हैं
वो बेचारे किस तरह अपने अखराजात बर्दाश्त करते होंगे। हमारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुद्दार साहब से और डीसी मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि वो टिब्बा करीमाबाद के जितने भी मसाइल हैं वो हल करें। अपील एक महंगाई उरूज है, गरीब तबका शुदा मजदूर है, अफोर्ड कोई चीज़ नहीं कर सकता, महंगाई उरूज है, ना कोई खाने का सिस्टम इंतज़ाम है, ना कोई बिजली है, ना कोई गैस का सिस्टम है। ये वास्ते हुकूमत को अपील है कि भाई सहूलत अवाम को मुहैया की जाए। एक शहरी ने कहा कि इस महंगाई की वजह से मुझे ये दुकान खुले आसमान के नीचे लगाना पड़ी, क्योंकि एक दुकान किराए पर ली हुई थी जिस बिजली का बिल ना अदा करने की वजह से मुझे ये वो छोड़नी पड़ी। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, इस 500 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर कहाँ जाए। यहाँ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम का भी तो वक्त का चूल्हा जल सके। चौक कुरैशी के अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का भी 2 वक्त को चूल्हा जल सके। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ फराम करने के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो गया। देखते हैं जांजेब अली की रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर पिछले चंद माह से आटा और चीनी गायब है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे ही रह गए हैं, जबकि आवाम आटा और चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 68 रुपए और आटे का 10 किलो का बैग कीमत 400 रुपए है, जबकि मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो और आटे का 10 किलो का बैग 620 रुपए का फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही है। आटा और चीनी ये दोनों नायाब कर दिए इन्होंने, ये ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं चीनी, पहले ही इनके आती नहीं है चीनी, जब भी आते हैं चीनी वो है नहीं। के लिए आटे के लिए वही लाइनें लगी पड़ी हैं, चीनी जब होती है तो रश नज़र आता है, वैसे कोई सूरत तैयारी नहीं है। महीने के अंदर पूरा मुहर्रम हो गया, एक दफ़ा चीनी नहीं आई, उसके बाद महीना गुजर जाता है, बंदे चक्कर लगा के चले जाते हैं, थक जाते हैं, फिर वही मार्केटों के धक्के। अगर चीनी लोगे तो घी भी लो, इसका दो भी लो, गरीब आदमी क्या करेगा। अगर उसको साबुन चाहिए तो साबुन ले आएगा, चीनी ले आएगा, आटा नहीं, आटे के शाम को आना, अब शाम को फिर घर छोड़ के हमें अपना काम वाम छोड़ के हमें, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी के साथ दूसरी तमाम अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाएं ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मानी पठान के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन के जहाज का बुनियादी किरदार है। पार्लिमानी निज़ाम चंद खानदानों के लिए है जिन्होंने इसे तश्कील दिया। जिन लोगों ने ये निज़ाम बनाया आज तक वही हम पर मुसल्लत हैं। अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर ने चकवाल में मुनक्किद होने वाली बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान मजबूर और मुकय्यद वजीर आजम है। APC मफाद परस्तों और करप्टों का इकट्ठ है, जहाँ अवाम को दरपेश मसाइल पर कोई बात नहीं होगी बल्कि अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखें, हम तो इमरान खान को एक मजबूर और मुकय्यद वजीर आजम देखते हैं। वो खुद इस निजाम के नौकर हैं और उसकी असेंबलियों की लिस्ट निकाल लें। आज काफ लीग छोड़ दे तो हुकूमत गिर जाती है, आज MQM छोड़ दे तो हुकूमत गिर जाती है। तो वो कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? वो कुछ को ब्लैकमेल करके, कुछ को डरा के। पंजाब असेंबली अगर नैब ना हो तो आज तक कब का शहबाज शरीफ साहब पंजाब असेंबली खरीद चुके होते। कन्वेंशन से मरकजी नायब सदर राजा जाहिद महमूद, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन आरिफ चौधरी, सदर अवामी तहरीक शुमाली पंजाब काजी मोहम्मद शफी व दीगर उहदेदारान ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ रजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। धरती माँ का एक और सपूत फर्ज पर कुर्बान हो गया। पाक फौज के नडर नौजवान नमाज जनाजा सवात में अदा कर दी गई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। जिला सवात के गांव इस्लामपुर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज का बहादुर बेटा मीरान शाह में जामे शहादत नोश कर गया। शहीद फौजी जवान को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। शहीद जवान ताजवर की नमाज जनाजा में सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। सलामी के साथ कब्रों पर फूलों की चादर भी चढ़ाई।
ہمت، جذبہ اور شوق ہو تو منازل کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال قصور کی اقرا اور عائشہ یونس ہیں، جنہوں نے غربت کو تعلیم سے مات دینے کا عزم کیا اور لاہور بورڈ شعبہ آرٹس میں پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہمت اور جستجو کی مثال دو سہیلیاں اقرا زین اور عائشہ یونس، جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی مگر تعلیم سے غربت کو مات دی۔ اقرا زین کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ غربت سے مارے والد نے ویلڈنگ کی مزدوری کر کے بیٹی کو پڑھایا۔ میری بیٹی نے قصور لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن اتنی پوزیشن لینے کے بعد میری بیٹی سے پہلی جو حکومت نے وہ کافی تعاون کرتی تھی، لیکن اس حکومت نے کوئی کسی قسم کا کوئی میڈل نہیں، کوئی تعاون نہیں ہمارے ساتھ۔ میں ایک ویلڈر مزدور آدمی ہوں۔ میرا نام اقرا زین ہے، میں نے لاہور بورڈ میں شعبہ آرٹس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ میرے والد ایک ویلڈر ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھاتے ہیں۔ میں بہت میرے اساتذہ کرام نے میرا بہت ساتھ دیا، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے میری۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بہت آگے تک جا سکتی ہو، محنت کرو، کوشش کرو۔ دوسری طرف لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی عائشہ کی والدہ نے میاں کی وفات کے بعد گھروں میں کام کاج کر کے بیٹی کو پڑھایا، تو بیٹی نے بھی لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن لے کر ہمت اور عزم کی ایسی مثال قائم کی کہ ماں اساتذہ کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ میرا نام عائشہ یونس ہے، میں نے لاہور بورڈ میں شعبہ آرٹس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور سب سے زیادہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں لاہور بورڈ میں یا کسی اچھے اسکول میں پوزیشن حاصل کر سکتی تھی۔ میں اپنی بچیاں اپنی محنت مزدوری کر کے پڑھایا ہے، اپنا کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اپنا یہ چاہتے ہیں بھی اللہ پاک انہاں نوں کامیاب کرے۔ اللہ پاک اس میں جڑا نہیں بھی غریب آدمی پڑھا سکتا، جڑا کہندا بھی نہیں غربت دی وجہ تو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی توفیق ہمت دے۔ لاہور بورڈ میں پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر دونوں طالبات نے اپنے ٹیچر کو پھولوں کے ہار پہنائے اور خوب داد وصول کی۔ بچیوں کے استاد کا کہنا ہے، جی یہ اقرا زین جو ہے یہ ماشاءاللہ جب داخلے کے لیے آئی تھی اس وقت بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بچی ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے اور ماشاءاللہ ذہین ہے۔ الحمدللہ اس بچی نے 1065 نمبر لے کے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ بچی واقعی ڈیزرو کرتی تھی کہ پہلی پوزیشن کی حقدار تھی۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ٹاپر بچے ہیں ان کو جو ہے مالی امداد بھی دے اور ان کو گولڈ میڈل بھی دے۔ اقرا اور عائشہ آج بھی کتابیں لیے پڑھائی میں مصروف یہ پیغام دے رہی ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کرونا وائرس کے پیش نظر 8 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کے بعد تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر 8 تعلیمی ادارے سیل کر کے تا حکم ثانی بند کر دیا گیا۔ ان تعلیمی اداروں کے 9 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں تعلیمی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے حکام ہنگامی اقدامات کریں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران چکوال کے تاریخی مقام کھٹاس راج پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چکوال اور صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے کھٹاس راج میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس۔ انڈسٹری کے ممبران کی سماجی شخصیت و ممبر چیمبر آف کامرس راجہ مجاہد افسر راجہ مشاہد افسر کی دعوت پر کھٹاس راج پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر عبدالستار ثانی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ریسٹ ہاؤس کھٹاس راج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر آف کامرس راولپنڈی ملک صبور، ڈپٹی کمشنر چکوال عبدالستار احسانی، سماجی شخصیت راجہ مجاہد افسر و دیگر نے کہا کہ ضلع چکوال جہاں اسے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہیں خوبصورت علاقہ سیاحت کے حوالے سے بھی اپنی پہچان آپ ہے۔ ضلع چکوال میں سرمایہ کاری کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔ تقریب کے اختتام پر راجہ مجاہد افسر ڈپٹی کمشنر چکوال نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ممبران میں شیلڈ اور تحائف تقسیم کیے، جبکہ صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس ملک صبور نے راجہ مجاہد افسر ڈپٹی کمشنر چکوال کو شیلڈ پیش کی۔ صدر چیمبر آف کامرس راولپنڈی ملک صبور نے سچ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں شکر گزار ہوں راجہ مجاہد صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں ایک اتنے زبردست جگہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملی جی۔ اور میں آپ کے توسط سے اس تمام سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ضرور کھٹاس کا چکر لگائیں اور آئیں اور آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ نیچرل بیوٹی کے ساتھ ساتھ جو
मैन मेड चीज़ें हैं, जो इतनी पुरानी एक हमारे पास तहजीब मौजूद है, उसको भी देखने के ये लायक है। तकरीब के बाद मेहमान ख़ुसूसी मलिक सबूर, डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी, राजा मुजाहिद अफसर, राजा मुशाहिद अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर चौहान सैदन शाह व दीगर मेहमानों ने कटास राज में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जबकि सदस्य वी ऑर्गेनाइजेशन मुनीर हैदरवान ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, एच न्यूज़ चकवाल। कोहाट और हंगू में मकामी अफराद के कत्ल के वाकयात के बाद हालात कशीदा हो गए, जिस पर जिली इंतजामिया और कोहाट पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाए। अली बंगिश रिपोर्ट करेंगे। कोहाट में अमन के इनेकाद को बहाल करने के लिए सेठ सैफुल्लाह खान की रहायशगाह पर अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा ताजिर बरादरी और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गौहर सैफुल्लाह खान ने तमाम शुरका का अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोहाट का हर शहरी कोहाट के माहौल को पुरअमन रखना चाहता है। वाज़ेह है कि कोहाट में तमाम मजहबी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हुई कि हम कोहाट के अमन को किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर अमल पैरा होंगे। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। डिस्ट्रिक्ट बार तेमरगिरा में मुमताज कानून दान मरहूम सरदार अब्दुल हकीम ताजक एडवोकेट की याद में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार तेमरगरा में मुमताज कानूनदान मरहूम सरदार अब्दुल हकीम ताजक एडवोकेट की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुए, जिसमें जजेस, वकला, अमायदीन इलाका, सहाफियों और मरहूम के खानदानों के अफरादों और उनके रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से सीनियर सिविल जज तेमरगरा इसा खान अफरीदी, डिस्ट्रिक्ट बार तेमरगरा के सदर बादशाह अहद एडवोकेट, सरदार जावेद अख्तर एडवोकेट, सैयद अब्दुल हक एडवोकेट और दीगर ने खिताब करते हुए सीनियर कानूनदान मरहूम सरदार अब्दुल हकीम ताजक को एडवोकेट को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी जिंदगी पर तफसील से रोशनी डाली। मकरूरन ने कहा कि मरहूम सरदार अब्दुल हकीम ताजक एडवोकेट ने कानून की बलादस्ती और इंसाफ की बरहमी के लिए जिंदगी वक़फ़ कर रखे थे। इस मौका पर मरहूम की बुलंद दराजात के लिए खसूसी दुआई की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिर। का रिहायशी बिजली के पोल की जद में आकर माजूर हो गया। घर का वाहिद कफील इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। फिदा मेरानी रिपोर्ट करेंगे। सक्का जिला की तहसील पन्नू अकिल का रायशी सजाद अहमद थईम कुछ साल पहले अपने घर की बिजली की तार को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा, बदनसीबी से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। अपने घर का कीमती सामान बेचकर इलाज करवाया, फिर भी ठीक न हो सका। सच टीवी से बात करते हुए सजाद थईम ने कहा, मैं साजिद अली थईम पन्नू में बिजली के खंभे से गिर गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मैं घर में जो भी मेरा कीमती सामान था मैं अपना खत्म करके अपना इलाज करवाया। 5 लाख रुपए मेरा खर्चा आया था। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं बच्चों को खिलाऊं और अभी मैं 4 रुपए पे पड़ा हूँ। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ और समाजी तंजीम से मेरी मदद की जाए, जैसे मैं अपने बच्चों का गुजर सफर आसान कर लूँ। हुकूमत और समाजी तंजीमों को चाहिए सजाद थईम की माली मदद के साथ इलाज के लिए उनका साथ दे, ताकि अपने बच्चों के साथ आसान सी जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ फिदा मिरानी, सच न्यूज़ पन्नू अकिल। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। कोरोना के हवाले से मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,952 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 640 नए केसेस की तशखीस भी हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 34,544 नए टेस्ट किए गए। 640 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,05,671 हो गई। अब तक 31,60,924 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,33,626, पंजाब में 98,368, खैबर पख्तूनख्वा में 37,317, इस्लामाबाद में 16,124, बलूचिस्तान में 14,269, आजाद कश्मीर में 2,517 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,450 तादाद हो गई है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद एक मौत रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,416 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 6,952 हो गई है। अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,92,303 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 837 मरीज जेर इलाज हैं। 106 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। दरख्त न सिर्फ सदका जारिया बल्कि फिजाई आलूदगी को कम करने का बेहतरीन जरिया भी हैं।
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ندیم سکھیرا نے نیو جوڈیشل کمپلیکس حاصل پورہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ درخت فضائی آلودگی کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن گرین پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ندیم سکھیرا، ایڈیشنل سیشن جج محمد طاہر خلیل، صدر بار ایسوسی ایشن فیاض شاہد ادمانہ، جنرل سیکرٹری عمران صفدر گرایا، رینج افسر محکمہ جنگلات رانا ساجد محمود، سپرنٹینڈنٹ عدالت حاضہ محمد صدیق گمن و دیگر نے نیو جوڈیشل کمپلیکس حاصل پور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا، جبکہ آخر میں پودوں کی آبیاری ملک و ملت کی سلامتی، بقا اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ندیم سکھیرا اور صدر بار ایسوسی ایشن فیاض شاہد خان ادمانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس کے حکم سے شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمارا علاقہ تو ویسے ہی بہت گرم علاقہ ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ درخت لگانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ سنت نبوی اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سلمان ارشد، سچ نیوز، حاصل پور۔ ملک کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک بنانے کا مشن چشتیہ میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت عدالت میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ مزید تفصیلات رانا عمران کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے گرین اینڈ کلین پروگرام کے تحت پاکستان کو سرسبز بنانے اور صاف شفاف ملک رکھنے کے لیے چشتیہ میں شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے عدالت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عدالت کے احاطے میں پودے لگائے گئے۔ شجرکاری مہم کی تقریب کا انعقاد ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات کی عدالت میں ہوا اور عدالت کے احاطہ میں ڈسٹرکٹ سیشن جج رانا محمد سلیم، سیشن جج عبدالرفیق اور سیشن جج یاسر عرفات نے وزیر اعظم کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے پودے لگائے۔ شجرکاری مہم کی تقریب کے دوران سیشن جج رانا محمد سلیم کے ساتھ تمام اراکین نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا عمران، افضل، سچ نیوز، چشتیاں۔ محبت ایک ایسا وصف ہے جسے پا کر نابینا دیکھ، بہرے سن اور گونگے بول سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی پرندہ دکھا رہے ہیں جس کا مالک اور کبوتر یک چاند دو قالب کی مثال بن گئے۔ کبیر والا سے عبد المجید باٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ خدا کے بعد محبت سب سے بڑی سچائی اور تحریک ہے۔ محبت وہ وصف ہے جسے پا کر نابینا دیکھ، بہرے سن اور گونگے بول سکتے ہیں۔ محبت وہ احساس ہے جو جرساتی دھوپ میں ٹھنڈک، یخ بسا موسم میں حدت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی بکھیر دیتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بے زبان پرندے سے کروا رہے ہیں جو ایک انسان کی محبت میں اپنی پرواز بھول چکا ہے۔ اس کی زندگی کا محور یہی ایک شخص ہے جس کے ساتھ وہ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے۔ کبھی مجبوری میں اسے گھر یا کہیں اور چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنی محبوب کی یاد میں راہ تکتا رہتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اڑ کر اس کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مالک کے منہ سے دانا کھائے بغیر پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ اپنے مالک سے اندھی محبت میں اس قدر گرفتار ہے جو یک جان دو قالب کی مثال پر پورا اترتا ہے۔ میں نے بچپن سے رکھے ہوئے ہیں کبوتر۔ ایک بچہ، ایک رات کا بچہ تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کو میں نے اپنے منہ سے پالا تو وہ جوان ہو گیا۔ جب بچہ جوان ہوا کبوتر تو اس نے کہا میں پرندہ ہوں، مجھے آنکھ میں عقل دی ہے، تجھے عقل دی ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کر، میں وہ کام کروں جو دنیا میں کسی پرندے نے نہ کیا ہو۔ اب اس پرندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھی کافی کام کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ذکر ہے کبیر والا سے لاہور موڑ کے رہائشی مرزا اختیار بیگ کا، جو پچھلے کئی سالوں سے کبوتروں کی تربیت کرنے کے علاوہ انہیں اپنے بچوں کی طرح اتنے پیار سے پالتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں کہیں بھی سفر کروں یہ میری والہانہ محبت میں سائے کی طرح میرے پیچھے اڑتے ہیں۔ جس کی زندہ مثال میرے کبوتر کے پیار سے رکھے نام محسن کی ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوں تو یہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے میرے ساتھ پرواز کر سکتا ہے، اور جہاں اسے رکنے کا اشارہ کروں تو یہ اڑ کر میرے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ اختیار بیگ کا کہنا ہے کہ میں ایک کبوتر کو 15 سے 20 دنوں کی محنت سے تیار کر لیتا ہوں اور میرے کہنے پر کسی دوسرے کے پاس بھی چلا جاتا ہے، اور میں اسے محسن کے نام سے پکارتا ہوں تو یہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ میری ساتھ موٹر سائیکل کے ساتھ اڑتا ہے، کار کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے میرے ساتھ کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ اگر جو انسان ایسے ہی مخلص ہو جائے تو
पूरी कायनात के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी चीज ना इंसान को दरपेश का मुकाबला करना पड़े। कबूतर और मालिक का ये अनोखा प्यार देखने लोग दूर दराज से मेरे पास आते हैं और हमारी वालेहाना मोहब्बत देखकर हैरान रह जाते हैं। प्यार की जुबान इंसान तो क्या हैवान भी खूब समझते हैं। शर्त ये है कि प्यार दिल से किया जाए। मालिक इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत मेरी मदद करे तो मैं इन कबूतरों को मुल्की दिफा के लिए तरबियत दे सकता हूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।